I'll just quickly record everything for the video. Real estate is huge. So land investment is not just about खरीदना बेचना. It is about value addition. Micromitti received 90 crores of funding. Can you tell where are they getting deployed or have they already got deployed? तो वो GCC कहाँ बनेंगे? वो Tier 2, Tier 3 सिटी में बनेंगे. जगह नहीं है Tier 1 सिटी के अंदर. But is there a scare saying that अगले 5 साल में Tier 2 बड़ा शहर बन जाएगा and same problems होंगी या it will be planned well? Hello Manoj ji, thank you to be part of Free Talk podcast. Happy to have you on our show. We'll be very happy to know more about yourself for our audience. कुछ आपके बारे में बताइए. ठीक है. So मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ. I belong from a very small town, Tier 3 सिटी मंसूर, यहीं MP के अंदर है. और born and brought up in मंसूर, came to इंदौर, went to US for 5 years. मैंने मास्टर्स वहाँ से किया in very different degree geography. Or then I came back in 2009 here again in Indore and I started an IT firm. So last 15 years I have been into IT. We've been exporting lot of softwares and there is a platform named AI Trillion, SaaS e-commerce marketing automation platform hai. A very well known successful platform in Shopify ecosystem. And then we started like 2.5 years back we started researching on all this real estate, fractional rate, what is happening to market. And then April last year, I joined full time and we launched this company named Micromitti. And that's what has brought you and me together today. Very interesting. I am surprised to know from IT, company moving into real estate. How was this transition? What sparked this transition in you? The IT I started because I was a first generation entrepreneur और capital नहीं होता था. IT was very easy for anybody to start. 2 लोगों से आप IT company start कर लो और capital requirement नहीं होता था. But moving fast forward 15 years down the line, हमें समझ में आया कि generational wealth land and property में tied up है ना. Actual पैसा अगर किसी का बना है for years बिना कुछ करे एंड एक्चुअल वेल्थ जनरेशन इन्वेस्टमेंट और वेल्थ को मैं अलग अलग तरीके से देखता हूँ तो वो रियल एस्टेट में बना है. एंड टाइम वॉज राइट बिकॉज आई कम फ्रॉम द फ्रेटर्निटी हु बिलीव्स कि इंडिया विल बिकम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी और उसमें Tier 2 Tier 3 सिटीज बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, इवन विलेजेस. एंड देयर इज अ मासिव गैप इन इंस्टीट्यूशनल रियल एस्टेट एक्सेसिबल टू रिटेल पीपल. तो वहीं ये माइक्रोमिट्टी का आइडिया जन्म हुआ एंड आई शिफ्टेड फ्रॉम टेक टू लैंड. ऐसा लगता है बोलने में बट इट इज अ प्रॉप टेक. इट्स स्टिल अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रियल एस्टेट. ग्रेट. ये बताइए, यू वर विथ हार्वर्ड, सो हाउ हैज इट इन्फ्लुएंस्ड यू इन योर एंटरप्रेन्योरल जर्नी? सो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी से मास्टर्स किया था एंड हार्वर्ड आई टुक अ लीडरशिप कोर्स इन फिनटेक एंड फाइनेंस, आप बोल सकते हो. दैट ओपनड एन आई की हाउ HNIs आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इनटू द रियल वर्ल्ड, है ना. एंड जो यूएस का एक्सपोजर था फ्रैक्शनल वहाँ पे भी होता था. तो टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ बिग रोल इन दिस काइंड ऑफ सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट,
जो कि वेरी अनऑर्गेनाइज्ड है. सो दैट इज शेप्ड हाउ टू यूज फाइनेंस इनटू रियल एस्टेट, हाउ टू ऑर्गेनाइज इट, टेक्निकली हम कैसे करेंगे जो हम करना चाह रहे हैं अभी. That all I learned there, and the whole alumni network has also helped me in boosting the confidence that this can be done in India. Right. For every business, हर business के लिए there are challenges. Now, for example, transition of investment into land bank. Okay, there are huge challenges. So, how, as a company, Micromitti, you are resolving this concern? 3 बड़े चैलेंज है रियल एस्टेट के अंदर. वन, इट इज़ एन वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, स्पेशली स्टिल इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़. तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर वेरी टफ. तो पहला हमने काम किया, लीगल और रेगुलेटरी टीम बहुत स्ट्रांग बनाया हम लोगों ने. वी न्यू दिस विल कम टू अस, एंड समबडी लाइक अस हु इज़ न्यू इनटू द रियल एस्टेट, परमिशन से लेके एवरीथिंग, लाइसेंसिंग इज़ वेरी वेरी टफ. Not anybody and everybody get into it. So we brought in India's best law firms with us. We hired some of the best people into this. Second issue है real estate के अंदर, when you are talking about prop tech, fractional, तो investor skepticism है ना. Usually आम आदमी छोटे छोटे प्लॉट्स में इन्वेस्ट करता है, and we are bringing Micromitti to आम आदमी, है ना. इंस्टीट्यूशनल ग्रेड इन्वेस्टमेंट की हम बात करें आम आदमी के साथ में, तो पहले उनको पी, प्राइवेट इक्विटी समझाना, उनको फ्रैक्शनल समझाना, फिर टेक्नोलॉजी में ट्रांसपेरेंसी की हम जब बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए, लेकिन इन्वेस्टर एक स्केप्टिज्म होता है कि मेरा ट्रांसपेरेंसी मतलब मेरे शेयर्स भी दिखेंगे, है ना. तो वी आर वर्किंग अ लॉट ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन एंड एजुकेटिंग देम ऑन द इक्विटी मार्केट्स. थर्ड, सबसे बड़ा अनदर इशू है कि आप टेक्नोलॉजी का जब यूज़ कर रहे हो, ठीक है, रियल एस्टेट के अंदर, so then there are a lot of developers, colonizers, there are a lot of people who again are like कि is it something going to close my market. जैसे नो ब्रोकर इंडिया में जब आया था तो काफ़ी ब्रोकर्स को लगा था कि क्या मेरा मार्केट खत्म हो जाएगा, हमारी नौकरी खा जाएगी. राइट, विच इज़ नॉट ट्रू. एक्चुअली वी आर क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम जहाँ पे डेवलपर्स को भी बहुत फायदा होने वाला है, कॉलोनाइजर्स को फायदा होने वाला है, ब्रोकर्स को फायदा होने वाला है. एक नया काइंड ऑफ इन्वेस्टर ऑडियंस हम लेकर आ रहे हैं जो रियल एस्टेट में था ही नहीं, है ना. यूजुअली दैट मनी वाज गोइंग ओनली टू स्टॉक मार्केट्स. यूथ एक पूरा सेगमेंट है. तो वो जो पूरा इकोसिस्टम में जब कोई नया प्लेयर ऐसा आता है तो लोगों का स्केप्टिसिज्म बढ़ जाता है होल इकोसिस्टम का कि ये टेक्नोलॉजी से हमारा जॉब, बिजनेस तो खत्म नहीं करेंगे. तो वी आर ट्राइंग टू अगेन डू अ लॉट ऑफ एजुकेशन ऑन दैट फ्रंट. Great. I recently read that Micromitti received 90 crores of funding. Can you tell more about these funds? Where are they getting deployed or have they already got deployed? इससे क्या growth होने वाला है, क्या benefit होने वाला है? Right. तो हमने सोचा नहीं था कि just in 11 months we will be able to raise this much amount of fund. But when we started educating people, and the more we are educating common men, again HNI and family offices are connecting more to us. So we were able to raise this 90 crores from just 4-5 families within Indore itself. और थीम बड़ा सिंपल है हमारा. There is an holding company which we call Micromitti Real Estate Ventures Private Limited, which does not buy or sell any asset, but we have deployed 20 CR into that just for educating people, है ना. ये जो इकोसिस्टम हम बना रहे हैं फ्रैक्शनल रियल एस्टेट का, या हम जो टेक्नोलॉजी लाइन बात कर रहे हैं, प्रॉपटेक, इंडियाज बेस्ट आर्किटेक्ट हम इंगेज कर रहे हैं, तो हाउ पीपल विल नो, है ना. तो वो पैसा हमने वहाँ डिप्लॉय करा, एंड अनदर रेस्ट 70 CR वी हैव डिप्लॉयड इनटू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. तो माइक्रोमिट्टी का बेसिक फिलॉसफी है लैंड बैंकिंग एंड इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट्स वेयर इट विल बी अप्रिशिएटिंग. तो वो पैसा हम ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर प्रिपेयरिंग टू कम अनदर सीरीज ए राउंड ऑफ 200 CR. Very nice. Anyhow, we'll discuss more in detail about that. As you come from a tech background, so what is the scope of AI-driven analytics? What Micromitti is trying to do? आम भाषा में बड़ा सिंप्लीफाइड बताऊं कि आज आप कोई प्लॉट खरीदते हैं आम आदमी, तो आप ब्रोकर को फ़ोन लगाओगे, दोस्तों को फ़ोन लगाओगे, तो हम अपना रिसर्च करना चालू कर देते हैं. एक सिंपल आंसर नहीं आता. AI विल हेल्प सबसे पहले कि प्रॉपर्टी का प्राइसिंग आज क्या है और प्रेडिक्टिव एनालिसिस कि आगे क्या होगा, है ना. बड़ा सिंप्लीफाइड है. डेमोग्राफिक्स डेटा हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, हम मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे हैं पास में जाने के लिए. हम वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो क्या रेट में खरीदते हैं, वो बेसिक इनपुट डाल के बेसिक AI यूज़ कर रहे हैं टू गिव दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. सेकेंड, हम लोग वी बिलीव AI इज़ गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन टेनेंट वेरिफिकेशन, कम्युनिटी मैनेजमेंट, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है आज की तारीख में. तो आपने जैसे देखा होगा अभी कुंभ के मेले में कैमराज लगे हैं लोगों को डिटेक्ट करने के लिए, कोरोना काउंट करने के लिए. तो दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल AI अप्रोच जो कि सिंपल है, बहुत
बहुत टफ नहीं है. वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट टू द मार्केट. Or do you think लोगों की नौकरी खा जाएगी AI? I mean that's a myth outside in market. मैं एक सिंपल एग्जांपल सब लोगों को देता हूँ कि जब फैक्ट्रीज बनना चालू हुई थी और जब मशीन छोटा चालू हुई तो हमें ऐसा लगा था कि फैक्ट्रीज अब जब बंद हो रही हैं, मशीन्स इतना ऑटोमेशन कर रही हैं तो जॉब चले जाएंगे. एक्चुअली इकोनॉमी और ग्रो हो गई, राइट. तो मशीन्स आज छोटी हो गई फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, लेकिन जॉब्स कम नहीं हुए. तो और ये तो बड़ा सिंप्लीफाइड टॉपिक आजकल सब लोग समझ चुके हैं कि AI जो चलाएगा वो रूल करेगा. AI अपने आप को चलाएगा ऐसा होगा नहीं. somebody who knows AI will be more efficient. तो जॉब्स जाएंगे नहीं, जॉब्स एक्चुअली बढ़ेंगे ना. ऐसे रियल एस्टेट मार्केट इज अ ह्यूज पोटेंशियल, है ना. द पीपल विल कम फ्रॉम AI, पीपल विल कम फॉर डिजिटल मार्केटिंग, पीपल फ्रॉम लीगल कंसल्टेंट चाहिए हमको, फाइनेंशियल कंसल्टेंट चाहिए हमको, 3D वाले लोग चाहिए, 3D VR वाले, डॉक्यूमेंटेशन के लोग चाहिए आपको, कंसल्टेंट्स चाहिए आपको, प्रॉपर्टी मैनेजर्स चाहिए, है ना. ये टेक्नोलॉजी पूरा ड्राइव करेगा. तो देयर आर प्रोफेशनल जॉब्स विच विल बी जनरेटेड इनटू रियल एस्टेट मार्केट जो अभी तक होते ही नहीं थे, है ना. तो जब हम AI की बात कर रहे हैं तो पूरा टेक रियल एस्टेट के अंदर आ जाएगा. तो एक पूरा मार्केट ओपन हो गया टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए जहाँ पे वो था ही नहीं. तो देयर विल मोर एंड मोर जॉब्स हियर, प्रोफेशनल जॉब्स आई एम टॉकिंग अबाउट. Now speaking about little bit of international market, Micromitti 1 साल पूरा कर रहा है. इंदौर में you have already created a good vibe. Can you give us more insight about Micromitti INC? What is the idea behind this? So simple idea. 15 साल से मैंने US में काम किया है ना. I know lot of people in US who want to invest in India, ऑलरेडी करते हैं, लेकिन जब भी वो इंडिया में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, स्पेशली रियल एस्टेट, तो वही डर जो यहाँ के लोगों को भी है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मैं पैसा कहाँ दूंगा, किसको दूंगा. तो माइक्रोमिटी ने जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है इंडिया में, उसके लिए हमने माइक्रोमिटी इंक US बनाया है, जहाँ पे NRIs का पैसा, और नॉट जस्ट NRIs, देयर आर इजराइलीज पीपल, देयर आर अमेरिकन, देयर आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया. इंडिया की ग्रोथ स्टोरी नो एवरीबॉडी नोज, बट जब वो इंडिया आ रहे हैं तो दे नीड ए स्ट्रक्चर्ड तरीका, है ना. दे नीड ए कैपिटल गारंटी. तो हमने वो स्ट्रक्चर्स बनाए कि वी आर गिविंग ए कैपिटल गारंटी टू ट्रस्ट और लीगल पेपर्स कैसे दोगे, है ना, कैपिटल. तो वो हमने बनाए. तो US से पैसा हम गुजरात में सेज लेकर आ रहे हैं, गिफ्ट सिटी के अंदर, सिटी के अंदर. एंड डायरेक्ट FDI इज अलाउड इन इंटीग्रेटेड टाउनशिप, है ना. तो वो राउट हम यूज करके वी आर इन्वेस्टिंग मनी इनटू इंडियन मार्केट. If I'll have to ask, next 3 years में what kind of funds can be expected getting into Indian market? I mean, if you are open to discuss. Yeah, it's very open. हमने fund raise करा हुआ है, तो everything numbers are all public anyway to private placement people. But हमारे already we have a asset base of 3,000 crore which we have to create and sell in next 3 years. और we have a land bank of 1,000 CR जो rotational होके we have projected it will be 7,000 crore asset base by the end of 5th year. Okay. इसमें we believe कि at least 20 to 30% पैसा we will be bringing from outside India. Okay. So typically 20 to 30% is a good amount of money. Yes. Still 80% remains from India. इंडिया में पैसा है, सो हमें बाहर से पैसा लाने की जरूरत नहीं है. पैसा तो इंदौर में ही बहुत बन गया. जैसे आई सेड 90 CR वैल्यू फैमिलीज विद इन इंदौर. Yes. वेरी इजीली. रियल एस्टेट इज अ बिग मार्केट. ये आज तक ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुआ तो नंबर्स आए नहीं कभी टेबल पर. तो हम जब फंड आज 200 करोड़ लेने जा रहे हैं तो वी ओनली नीड फ्रॉम 50 पीपल. वी ऑलरेडी हैव 3,000 पीपल लीड्स इन अवर CRM जो एक्सप्रेशन इंटरेस्ट फॉर्म भर के बैठे कि वी वांट टू पुट इट एज अ फ्रैक्शनल. क्योंकि अगेन इंस्टीट्यूशनल ग्रेड प्रॉपर्टीज के अंदर आम आदमी की एंट्री कभी थी नहीं. अब आम आदमी की मेरी डेफिनेशन ये भी है कि आज बहुत सारे लोग 10 लाख से 1 करोड़ 5 करोड़ लेके बैठे, पैसा लगाते हैं रियल एस्टेट में. काफी लोगों ने पैसा बनाया, लेकिन वापस रीडिप्लॉय करने के लगे नाउ दे हेजिटेंट कि आई नीड ए स्ट्रक्चर्ड फर्म. वो जो डर है वो माइक्रोमिट्टी के साथ में नहीं रहता है. Okay. How do you see the land investment evolve in India over next decade? So मैं लैंड को ऐसे डिफाइन करता हूँ. आज तक रियल एस्टेट को ऐसा देखा जाता है जमीन खरीदना बेचना, प्लॉट खरीदना बेचना, घर खरीदना बेचना. फॉर मी रियल एस्टेट इज एवरीथिंग. जो भी होगा जमीन पे होगा. आपका अगर ई कॉमर्स बढ़ेगा, लॉजिस्टिक बढ़ेगा, वेयर हाउसिंग बढ़ेगा. आप अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की आज जैसे हमारे PM बात करते हैं तो वो जमीन पे ही होने वाला है. आज हम हर्बल की बात कर रहे हैं या आयुर्वेदा की बात करें तो हमने देखा है कैसा किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग दवाइयों का बढ़ रहा है. फार्मास्यूटिकल एवरीथिंग विल हैपन ऑन लैंड, है ना. लैंड जब पे होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा जो अगेन गवर्नमेंट का बहुत पुश है. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो रियल एस्टेट इज एवरीथिंग. इवन मैं तो Tier 2 Tier 3 जो विलेजेस की बात कर रहा हूँ तो मैं किसानों को बोल रहा हूँ कि आप आपका जमीन बेचो मत, है ना. यू क्रिएट वैल्यू एडिशन ऑन इट, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करिए. तो
रियल एस्टेट इज ह्यूज. तो लैंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट खरीदना बेचना, इट इज अबाउट वैल्यू एडिशन. इट कुड बी वेयर हाउसिंग, इट कुड बी फैक्ट्रीज, इट कुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर. हमारे यहाँ डेस्टिनेशन मैरिजेस बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं. ठीक है, तो मैरिज गार्डन्स बढ़ रहे हैं. ठीक है, आज हम एक इंडिया जैसे जोमेटो इनकी बात है, ऐसी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है. जब हम घर में खाना नहीं बनाते तो किचन्स बढ़ रहे हैं, आपके रेस्टोरेंट्स बढ़ रहे हैं ना, एक अलग तरह का कल्चर है. क्लाउड किचन बढ़ रहे हैं. पीपल वांट टू ड्राइव लाइक 50 माइल्स एंड दे वांट टू ईट समवेयर डिफरेंट. तो ये सिटीज का सब अर्बनाइजेशन बढ़ते जाएगा. yes. है ना. ये गाँव में आपने जयपुर में सुना होगा कि वो फॉरेन टूरिज्म हो रहा है विलेजेस के अंदर, विलेज टूरिज्म के नाम से. है ना. तो ये सब चीजें बढ़ेंगी, होगा जमीन पे. तो ये वैल्यू एडिशन आपको देखना पड़ेगा. आप सिर्फ जमीन लेके बैठ नहीं रहे हो, जमीन में बहुत नए नए तरह की चीजें बन रही हैं. तो इट विल इवॉल्व लाइक एनीथिंग. आई बिलीव $30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बन रहा है, एंड देयर इज अ डेटा फ्रॉम गार्टनर आल्सो कि रियल एस्टेट विल बी ऑलमोस्ट $2 to $3 ट्रिलियन इकोनॉमी इन इंडिया. तो ये कहाँ होगा? टीयर 1 में तो जमीन नहीं है. टीयर 2, टीयर 3 गाँवों में ही होने वाला है. करेक्ट. सो आई वांट यू टू गिव मोर डिटेल्स ऑन टीयर 2 एंड टीयर 3 में क्या स्कोप है. जी, नंबर 1, जब भी हम टीयर 1 की बात करते हैं तो वी ऑल नो कि दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, बेंगलुरु में वी नो ट्रैफिक इशू, मुंबई में, है ना. तो लैंड तो है नहीं. इवन आई बिलीव जब हम IT इज अ ह्यूज सेक्टर इन इंडिया है, वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास, तो ये जॉब करने जब जाते हैं तो एट्रिशन इशू आता है कंपनीज को कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है, हेल्थ इश्यूज है, फैमिली साथ में नहीं रह पा रही है, मेरे लिए वो भी एक इशू है. ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है टीयर 2 में आके, है ना. इट इज़ वेरी अफोर्डेबल. इंदौर तो जैसे 7 टाइम विनर है क्लीन सिटी. क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंदौर है. देयर इज नो पॉल्यूशन, है ना. वाटर स्कैरसिटी नहीं है. आप फैमिलीज के साथ में रह सकते हो. आपका ट्रेवल टाइम इज ओनली 15 मिनट्स. सी तो सोशल, आप कितना भी बोलें कि प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ डिफरेंट, इट इज सेम. इट अफेक्ट्स योर प्रोफेशनल करियर. ठीक है, आप घर में साथ में रह रहे हो, घर का खाना खा रहे हो, वाइफ बच्चों से मिल पा रहे हो, तो आपका माइंडसेट अच्छा है. yes. तो टीयर 2 में ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है. टीयर 3 तो अभी भी बहुत अफोर्डेबल है. टीयर 3 में आज आप 15 लाख में एक प्लॉट खरीद सकते हो, विच विल कंटिन्यू टू. अगर आप रेट्स भी कंपेयर करोगे तो टीयर 1 में जो रेट्स हो गए दैट आर नॉट अफोर्डेबल फॉर अ मिडिल क्लास, इवन अपर मिडिल क्लास. सो हाउ विल दे क्रिएट देयर ओन हाउसिंग. पुराने ज़माने में तो लोग साथ में रहते थे, तो एक बहुत बड़ा घर होता था, सबको पता था. आज आप देखोगे कि वर्किंग क्लास टीयर 1 सिटी में सब रेंटेड हाउसेस में रह रहा है. yes. तो आगे चल के व्हेन दे ग्रो इन एज 40, 50, 60 ईयर कैसे रहेंगे? yes. क्या आप जीवन भर काम करते रहोगे? फिर आपको होगा कि आपको घर ही आना पड़ेगा. घर कहाँ से लाओगे? घर बनेगा इधर ही. तो आई एम श्योर इवन आपने चाइना 1+ पॉलिसी आई बिलीव की जो हो रहा है, तो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स बन रहे हैं. अब पहले ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स बनते थे चीप लेबर के कारण इंडिया में. अब चीप लेबर के लिए नहीं बन रहे. नाउ देयर इज एक्चुअल टैलेंट हियर एंड कंपनीज वांट टू यूटिलाइज दैट टैलेंट. तो वो जीसीसी कहाँ बनेंगे? वो टीयर 2, टीयर 3 सिटी में बनेंगे. जगह नहीं है टीयर 1 सिटी के अंदर. बट इज देयर अ स्केयर सेइंग दैट अगले 5 साल में टीयर 2 बड़ा शहर बन जाएगा एंड सेम प्रॉब्लम्स होंगी, या इट विल बी प्लान्ड वेल? आई एम श्योर पहले और अब में टेक्नोलॉजी विल प्ले अ ह्यूज रोल. गवर्नमेंट्स आर वेरी वेल इक्विप्ड टू प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर. पहले फिर भी हो जाता, अब GIS है ना. तो लैंड अर्बनाइजेशन ऐसे नहीं हो रहा. पहले प्लानिंग कागज पे होती थी, इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं था. लेकिन अब सब कुछ टेक्निकली आज आप लैंडसेट सैटेलाइट से देख पा रहे हो कि जैसा प्लान किया वैसा ही हो रहा है. है ना. तो लैंड वैसा जो कंजेस्टेड डेवलपमेंट टीयर 1 सिटी में हुआ है वैसा अब टीयर 2 में नहीं होगा. बेटर प्लानिंग हो रही है. रोड्स की विड्थ ज्यादा है, ड्रेनेज सीवर सिस्टम बहुत सिस्टमेटिक बनाए जा रहे हैं, एंड इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स बन रहे हैं. इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स हो रहा है. तो हॉस्पिटल्स कहाँ बन रहे हैं, बैंक्स कहाँ बन रहे हैं. पहले रैंडम बन जाता था, अब वी आर वेरी गुड इनटू प्लानिंग. तो वैसा कंजेस्टेड कुछ भी बनने नहीं वाला है, आई एम श्योर. और टीयर 2 में अभी भी बहुत ग्रोथ चांस है. इट विल गो टू टीयर. अभी जैसे हमारे यहाँ महानगर बोलने लग गए अभी से. तो टीयर 2 में भी इंदौर, उज्जैन, महू, देवास, ये तो हमारा टीयर 3 और गांव है. अभी जो महानगर ही बना लिया है. तो बहुत स्कोप है. तो अगले 10 साल 15 साल में तो मुझे इशू नहीं दिखता. हाँ, विद टाइम इट विल ऑलवेज ग्रो. तो फिर वो टीयर 2 टीयर 3 की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी. Maybe the smaller towns will get into tier 2 and tier 3. Now, we spoke more about technology, what is beyond AI? Is there something beyond AI? Because you are a tech guy, so you will be in a better position. AI बात कर रहे हैं, इसके beyond भी कुछ है? मैंने बोला आपसे, it is not about very high tech या AI. आज मुझे सिंपल कोई बिल्डिंग बेचना है तो मुझे 3D मॉडल बनाना है.
है ना, ग्राफिक्स चाहिए। तो अभी तक तो ऐसा कोई कर, यूजुअली बिल्डर कॉर्नर उतना काम ही नहीं करते थे प्रेजेंटेशन पे। लेकिन आज मैं यूएस में अपनी कॉलोनी को बेच रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करा रहा हूँ। सो यू नीड टू बी टेक सेवी। उतना सिंपल टेक भी अगर आपको आता है तो चलता है। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज पॉडकास्ट बना रहे हैं, राइट, है ना। तो आज वी आर द कैमरामैन बिहाइंड द सीन्स इज आल्सो गेटिंग अ जॉब। इट इज नॉट वेरी हाई टेक, बट वी नीड प्रोफेशनल पीपल। सो ये जॉब्स बढ़ते आएंगे। इफ यू गो टुवर्ड्स एआई देन इट्स अ नेक्स्ट लेवल। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। जब हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा, तो सेंसर्स लगते हैं रोड पर। मेरा तो डिग्री यही था, मैंने ज्योग्राफी जैसे बोला मैंने 2009 में किया था। तो ट्रैफिक सेंसर्स हम कैसे कर रहे हैं, हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं, इवन लैंड जो मैप पासिंग कर रहे हैं वो कैसे होगा। बहुत बहुत स्कोप है टेक्नोलॉजी का इसके अंदर। So moving forward, community trust. If people, I think in Indore, have a trust in Micrometer for a period of time, right? How have you built this trust? See, number one thing, हम हर प्रोजेक्ट में को इन्वेस्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग वी सेड वाज कि वी आर नॉट जस्ट अ डेवलपर इन कॉलोनाइजर्स, वी आर इन्वेस्टर्स विथ यू। तो वी डू 100% इन्वेस्टमेंट फर्स्ट। हम सारे लीगल पेपर वर्क पहले खुद क्लियर कराते हैं रेरा तक, उसके बाद वी ओपन फॉर फ्रैक्शनल। एंड व्हेन वी से फ्रैक्शनल, वी आर चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। वी आर नॉट एक स्क्वायर फीट जमीन तोड़ तोड़ के नहीं दे रहे, हम पूरे प्रोजेक्ट में आपको पार्टनर बना रहे हैं। तो 40% हम फ्रैक्शनल खोलते हैं और फिर हम प्रेफरेंस शेयर देते हैं। तो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर इज लाइक यू हैव द फर्स्ट राइट ऑन द कंपनी मनी एंड असेट। अगर कंपनी में जब भी डायल्यूट होगा हम सेल करेंगे, पहला पैसा आपको मिलेगा, तो को एग्जिट होगा। सेकंड, वी हायर्ड इंडियाज बेस्ट आर्किटेक्ट मिस्टर संजय पुरी। For example, is very well known. We hired JLL for our project feasibility reports, due diligence, legal due diligence. JLL is one of the world's 5 research companies. We have hired India's best law firms. तो जो भी रियल एस्टेट की प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करें। हम लिक्विडिटी का एक प्रॉब्लम है तो हम फंड बेस हमने इतना बड़ा बनाया कि वी नेवर हैव टू गो टू बैंक्स फॉर डेट, है ना। तो कंस्ट्रक्शन इज डन बाय आवर ओन मनी। तो ये सब चीज़ों से धीरे धीरे ट्रस्ट बना। फिर ब्रांड का अपना एक प्रीमियम, पीपल वी आर वर्किंग, वी आर क्रिएटिंग जॉब्स। तो यहीं के लोगों को जॉब्स मिल रहा है। हु आर द पीपल ऑफ बिल्डिंग माइक्रोमेटर, पीपल फ्रॉम इंदौर। तो एवरी सिटी वी गोना फॉलो द सेम पैटर्न। तो आप ही लोग कंपनी बना रहे हो और विद बेस्ट ऑफ इंडिया पीपल। One example, I met one of your team member. She was mentioning that she was working in a bigger town, and today she is very happy working in a company in Indore. So that builds in good trust. We have multiple people coming from Pune and settling over here. Our head of marketing is from Pune. Our VP is from Pune. You met, I believe, Gitanjali of PRH. She worked in Edwards. India is one of the best ad firm for 10 years in Mumbai. She is here. So like I said, it's a very good town, cleanest city for your future, for your own wealth generation. And that helps a company also to come up with talent very easily. What do you feel about the future of land investment? It's going to be huge. Like I said, है तो लैंड उतना ही, ये तो हमारी पीढ़ियों से हमें पता है ना। और आप अपने आसपास बहुत वेल्दी लोगों को देखोगे तो पैसा उन्होंने लैंड में ही बनाया है। हम आईटी में हो, चाहे हम जॉब कर रहे हो, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, फैक्ट्री भी चला रहे हैं, तो जब पैसा आता है तो या तो स्टॉक्स में जाता है या रियल एस्टेट में जाता है। स्टॉक्स में फिर भी बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो जब मैं लैंड की बात करता हूँ और फाइनेंस की बात करता हूँ तो मुझे लैंड ऐसा लगता है देयर इज वन पार्ट इज इन्वेस्टमेंट, वन पार्ट इज वेल्थ जनरेशन। इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक मार्केट में करते हो, पैसा वहां से आप कभी ना कभी तो निकालोगे ही, दैट इज नॉट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। लैंड में पैसा आप लगाते हो फॉर जनरेशनल वेल्थ जनरेशन। एक बार लग गया, सबका पैसा यहीं बना है। तो आई बिलीव इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट क्लास अपार्ट फ्रॉम गोल्ड, विच विल कंटिन्यू टू ग्रो। स्कैरसिटी हमेशा होने वाली है। द मोर इट ग्रोज द मोर एंड देयर इज नो फ्लक्चुएशन। तो योर पीस ऑफ माइंड, आप सो सकते हो सवेरे आपको जीरोधा ऐप खोल के आए नहीं, ऐप खोल के आपको देखना नहीं कि मेरा वेल्थ कितना फ्लक्चुएट हुआ है। सो for wealth generation, I believe land is the best investment. As you rightly mentioned, we have a huge younger generation out in India. One message to aspiring young investors, if you will have to. I am very concerned for the young generation कि आप लोग म्यूचुअल फंड सही है और SIP अच्छी बात है। एक मेरा स्टेटमेंट है, आधा ख्वाब आधा जमीन। आप ख्वाब में भी पैसा लगाइए बट आप जमीन में पैसा लगाइए, क्योंकि आपके पास अपना घर होना चाहिए, है ना। आज आप जो भी एक अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे आप भाग रहे हैं, यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स, आप कर सकते हो, बट थिंक अबाउट व्हाट अबाउट आफ्टर 40, 50, 60 ईयर्स। आपके फादर के पास, आपके ग्रैंडफादर अपना घर था, क्या आपके पास आज अपना घर है? नहीं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेल्थ क्रिएशन, क्या अपना घर है? आप 50 साल बाद क्या रेंटेड घर में रहोगे? यू शुड क्रिएट और start think of creating your own land bank or your own asset
इन रियल एस्टेट, जो मुझे लगता है अभी हो नहीं पा रहा है. देयर आर Yes. मेनी इश्यूज की कैश नहीं होता है. Right. रियल एस्टेट में कैश कंपोनेंट एक बहुत बड़ा इशू है, तो लोग नहीं खरीद पाते हैं, या टीयर 1 में तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते. तो आई बिलीव वो टीयर 1 वालों को भी टीयर 2 या टीयर 3 में जाके जहाँ वो अफोर्ड कर सकते हैं, आपको खरीदना चाहिए, है ना. यू शुड हैव योर ओन होम if you are working somewhere. Think long term. Yeah, I mean, youngsters can sip and plan it over a period of 5 years, 7 Yes. years, 8 years, so that they make their first home. Absolutely. I think मनोज, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. माइक्रो मिट्टी के बारे में समझ के बहुत नॉलेज मिली, एंड आई एम श्योर आवर ऑडियंस वुड लव, lot of investors would love to connect with Micro Mitti for whatever good things you guys are doing. Very happy. Thank you very much once again for giving us the opportunity to bring a tier 2 city fraction to people. बिकॉज हम सिर्फ बड़े शहरों के बारे में बात करते हैं, बट आज टीयर 2 इंदौर के बारे में सुन के हमें बहुत मजा आया. आई एम श्योर द ऑडियंस विल लव इट. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Thanks for coming to Indore. We believe we need more and more people like you to come to cities like not just Indore, Bhubaneswar, Yes. Nagpur. Yes. See what is going on, and the message should be passed on across the cities ki it is going and you can make wealth here. So I believe you and your team will play a very big role in educating, and I am sure you said you're doing a lot on educating people. Yes. And that is the most important thing we need in real estate as of now. Thank you very much. And thanks No for problem. coming. I mean, at Retalk, Real Estate Talk, our job is to ensure real estate knowledge is shared to people, given to people, to right people, so that people get educated and we take things forward from there. I think you have a similar vision. As you told, 20% of the money, whatever you are generating, you're putting it into educating people. I think we should look at a collaboration which can take things forward. Definitely. Thank you Thank for it, and I'm looking forward to it. Thank you. you very much. We could live. Micro Mitti is India's leading PropTech company, revolutionizing real estate investment.